Bismillahirrahmanirrahim. The topic of lecture is basic disturbances in acid-base balance and its compensation. Now we will check the acid-base balance by the some parameters in lab, and these parameters include the pH, bicarbonate ion, partial pressure of carbon dioxide, partial pressure of oxygen, and base excess. Examination of the substances that can alter the acid-base balance. These includes cation, anion, metabolites, and acid-base balance status is also assessed according to the status of the bicarbonate buffer system. This examination of these parameters is called ASTRAP in the name of the scientist. So by assessing these parameters we can check the acid-base balance of the body. These specimens are obtained from the arterial blood, and here are some normal values which are mentioned in the slide. Normal pH, as you know, ranges from 7.3 to 7.4. Normal pressure, partial pressure of carbon dioxide ranges from 4.8 to 5.9 kilopascal, and normal partial pressure of carbon dioxide, if it is lower than 4.8, then we will call it as hypocapnia, and if partial pressure of carbon dioxide is higher than 5.9, then we will call it as hypercapnia. And then partial pressure of oxygen, and calculated values of normal bicarbonate 22 to 26 millimole per liter, and here is the calculated value of the base excess. Now first of all we will discuss the base excess. Base excess is defined as number of moles of acid that is needed to add it to 1 liter of fully oxygenated blood to achieve 7.4 pH when the partial pressure of carbon dioxide is 5.3 kilopascal and the temperature of the body is 37 degree centigrade. अब जो बेस एक्सेस है ये ऑप्टिमल क्वांटिटी है जिसमें हम एसिड बेस बैलेंस के कंपोनेंट्स को, मेटाबॉलिक कंपोनेंट्स को असेस करते हैं. अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव में है तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि हमारी बॉडी में एसिड एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहा है, और एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक एसिडोसिस. एंड इफ इट इज इन पॉजिटिव वैल्यू देन इट मीन्स there is excess of base, hence we will call this situation metabolic alkalosis. There is however one very similar quantity that is base deficit. It means there is deficiency of bases in the body. Now ions and pH. Ions आपने पीछे भी इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिज्म में भी पढ़ा है. Ions are very important in maintaining the pH of the body. अगर बॉडी की पीएच जो है वो इफेक्ट हो रही है तो आयन की कंपोजिशन भी हमारे इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में हाईली इफेक्ट होगी. अगर और आयन्स में सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करने वाला या होने वाला आयन है वो पोटाशियम है. अगर एसिड बेस डिस्टर्बेंस बॉडी शो कर रही है तो हमारी बॉडी में जो पोटाशियम का बैलेंस है वो या हाइपो में चला जाएगा या हाइपर में चला जाएगा. इफ़ देयर इज एसिडोसिस देन देयर विल बी द इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम फ्रॉम द सेल्स, so this is called as hyperkalemia, and potassium will be lost in the urine. And if there is alkalosis, तो अल्कोलोसिस में हमारे पास प्रोटॉन का बैलेंस या प्रोटॉन का जो इफेक्ट है वो देखा जाता है, और अल्कलोसिस में देयर विल बी इफ्लक्स ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द सेल्स. एंड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल चार्जेस potassium enters inside the cell in order to replace that proton.
So alkalosis will lead to hypokalemia. Potassium is excreted in urine instead of proton. Then there is another terminology, this is called as anion gap. आप इसको पीछे फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं. Anion gap is the quantity which is almost equal to the sum of the concentration of non-measurable anions, which included albumin, plasma protein, phosphate, sulfase and organic anions. आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं by this formula, that is anion gap is equal to potassium plus sodium माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट आयन. जब आप इनकी वैल्यूज़ को इनपुट करेंगे सारे आयन्स की, तो हमारे पास जो नॉर्मल एनायन गैप है वो ये है. ठीक है, बॉडी का नॉर्मल एनायन गैप इतना होना चाहिए. अब एनायन गैप की ज़रूरत क्या है? एनायन गैप को हम इस्तेमाल करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस के काजेज़ को असेस करने के लिए, कि अगर बॉडी में एक्यूमुलेशन हो रही है एसिड्स की, तो anion gap हमें बताएगा. when there is accumulation of these commonly non-measured acids, there is unexpected rise in the difference of measured cation and anion. के जो ये एसिडोसिस है या एक्यूमुलेशन ऑफ एसिड है वो तब होगा जब बॉडी में कैटाइंस और एनाइन की वैल्यू बढ़ जाएगी. तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो बॉडी का एनाइन गैप है वो भी इफेक्ट होगा, इट विल गेट राइज. और अगर एनाइन गैप राइज हो जाएगा तो इसका मतलब है बॉडी में एसिडोसिस की कंडीशन जो है वो प्रीवेल कर रही है. इंक्रीज्ड एनाइन गैप, it is increased by increase in concentration of ions जो कि एनाइन गैप को बनाते हैं, जो पीछे आपने पढ़े हैं, पोटाशियम और क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन एंड सो ऑन. प्रेजेंस ऑफ न्यू एनाइन, कि अगर बॉडी में कोई नया एनाइन है या उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, उसकी वजह से भी एनाइन गैप जो है वो बढ़ जाता है. और देयर आर डिफरेंट पार्टिकुलर सिचुएशन जिसमें हम एनाइन गैप को मेजर करते हैं. और उसमें क्या है, लैक्टेट इन टिश्यूज, हाइपोक्सिया कंडीशन, कीटो एसिडोसिस में 3-हाइड्रोक्सीब्यूटारेट का बढ़ जाना, फॉस्फेट और सल्फेट का राइज करना रेनल फेलर में, ये वो कंडीशंस हैं जिनमें एनाइन गैप जो है वो इंक्रीज होता है. Now basic disturbance in the acid base balance and compensation. There are two main basic disturbances, that is acidosis and alkalosis. Acidosis when there is drop of the pH value and there is high production of acids or proton, and alkalosis is the process in which there is increase in pH value. and दोनों में हमारे पास जो बेसिक कंसंट्रेशन हाई या लो हो रही है वो प्रोटॉन की है, जहाँ से हम इंडिकेट करेंगे कि एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है. देन रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंसेस का मतलब है कि बॉडी के पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में शिफ्ट आ रहा है, या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा है, दैट इज हाइपरकेपनिया और हाइपोकेपनिया. And these metabolic disturbances are also indicated by the shift in base excess. और हमारी बॉडी में जो मेन बेस एक्सेस है जिससे हम एसिड बेस का इम्बैलेंस चेक करते हैं वो बाइकार्बोनेट आयन है. तो इन पैरामीटर की बेसिस पे हमारे पास 4 डिस्टर्बेंसेस हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस and metabolic alkalosis. Now respiratory acidosis, there is decrease in blood pH and its primary cause is increased partial pressure of carbon dioxide. In respiratory alkalosis, there is increased blood pH and its primary cause is decreased partial pressure of carbon dioxide. Then metabolic acidosis, decreased blood pH and its primary cause is decreased base excess, that is bicarbonate ion. And metabolic alkalosis, primary cause is increased base excess, that is bicarbonate ion. Now we will discuss one by one these conditions, their symptoms,
and their compensation. अभी इन बॉडी की इन चारों कंडीशंस को बॉडी कॉम्पनसेट और करेक्ट करती है. देयर इज डिफरेंस इन कंपनसेशन एंड करेक्शन. What is compensation? It is a process when an organism tries to maintain almost normal pH के बॉडी फ़ौरन से जिस भी चीज़ का लेवल या बढ़ रहा है या कम हो रहा है, मतलब अल्कलोसिस हो रही है या एसिडोसिस हो रही है, इधर इट इज़ रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक, तो बॉडी इसको फ़ौरन से कंपनसेट करेगी और नॉर्मल पीएच की तरफ लाने की कोशिश करेगी. एंड करेक्शन इज़ सॉल्विंग द एसिड बेस प्रॉब्लम इन द स्पॉट वेयर इट इज स्टार्टेड, कि जहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है बॉडी उसको करेक्ट करने की या सॉल्व करने की कोशिश करेगी. एंड a physician is capable of correction both respiratory and metabolic disturbances, and it can be respiratory disturbance can be mainly solved by artificial ventilation, and metabolic disturbances can be solved by mainly dialysis. Now respiratory acid base disturbances, एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्बेंसेस के जब बॉडी का जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है ये मेनली इफ़ेक्ट होता है. या कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में टू मच हो जाए या कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर ज़्यादा एक्सेल हो जाए, तो बॉडी जो है उसका नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इफ़ेक्ट होता है. जैसे आपने पीछे लेक्चर्स में पढ़ा है या देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो हम यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करते हैं. अगर PCO2 जो है वो 4.8 से लोअर है तो हम इसे रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कहेंगे, और अगर PCO2 हायर देन 5.9 है तो हम इसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहेंगे. रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंसेस आर मेनली कंपनसेटेड बाय द किडनीज, और किडनीज क्या करती हैं, या वो बाइकार्बोनेट आयन को रिटेन करती हैं या वो बाइकार्बोनेट आयन को एक्सक्रीट करती हैं, ताकि बॉडी का जो रेशो है बाइकार्बोनेट का और कार्बन डाइऑक्साइड का वो बैलेंस रहे. और ये आपने पीछे भी पढ़ा है कि जो रीनल कंपनसेशन है ये लास्ट मैकेनिज़्म है जो बॉडी कंपनसेशन की तरफ लेके जाती है, और ये बहुत लेंथी प्रोसीजर है जो कि बॉडी तब करने की कोशिश करती है जब हमारे पास जो हमारे मेन पीछे बेस लंग्स और जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक पाथवेज हैं जब वो या हमारे बफर सिस्टम जो हैं जब वो मेंटेन नहीं कर पाते बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को. Now first of all is respiratory acidosis. Respiratory acidosis is the process when there is low elimination of carbon dioxide from the lungs, usually in hypoventilation. तो हमारे पास क्या होगा, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर ना जाने की वजह से या कम जाने की वजह से इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यानी हाइपरकैप्निया होगा. एंड इफ देयर इज एन इंक्रीज PCO2 देन देयर विल बी डिक्रीज ऑफ pH, एंड इट्स काजेस ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इंक्लूड लॉस ऑफ फंक्शनल लंग्स, जैसे नमूनिया में या सिस्टिक फाइब्रोसिस में या एम्फाइसीमा में है. इफ़ देयर इज़ सम काइंड ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन तब भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकती है. एंड इनसफिशिएंट वेंटिलेशन हो जैसे न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स में या CNS डिसऑर्डर में या इंटॉक्सिकेशन में, तब भी बॉडी जो है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस शो करेगी. या स्पाइन डिफॉर्मिटीज़ हों, और इसको कंपनसेट कैसे करती है बॉडी, बाय इंक्रीजिंग बाइकार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन इन द ब्लड बाय मीन्स ऑफ इंक्रीज इजॉर्प्शन एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट इन ट्यूबुलर सेल ऑफ द किडनीज.
और इसमें जो प्रोटॉन है वो बॉडी से वाया किडनी एक्सक्रीट होगा, तो यूरिन एसिडिक होगा ताकि ब्लड की पीएच जो है वो नॉर्मल की तरफ आए। अदर काजेज इंक्लूड एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टेट इन द बॉडी। लैक्टेट के ज़्यादा होने की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस, या हम इसे लैक्टिक एसिड एसिडोसिस का नाम भी देते हैं। Now here are some symptoms of respiratory disorder, acidosis, hypoventilation, hypoxia condition, और रैपिड एंड शैलो रेस्पिरेशन है, लो ब्लड प्रेशर है, पेल स्किन है, हेडेक है, एंड जो आयन मैंने पीछे भी बताया था इफेक्ट होगा वो पोटाशियम है, तो देयर विल बी हाइपरकैलेमिया, और क्या कहते हैं पोटाशियम का लेवल बढ़ जाएगा, एंड डिसरिथमिया, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, डिसोरिएंटेशन एंड सो ऑन। Then respiratory alkalosis. Respiratory alkalosis is opposite of respiratory acidosis. It will be caused by hyperventilation, कि जब बॉडी जो है वो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करती है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और हाइपोकैप्निया। और इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब बॉडी में हाइपर वेंटिलेशन होगी तो कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, बिकॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बफर इन द ब्लड इज एल्ब्यूमिन। नाउ एल्ब्यूमिन बाइंड्स द 50% ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम। When there is change of pH, albumin bind or release proton and therefore calcemia is changed. और इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास कैल्शियम की आयोनाइजेशन है या बाउंडिंग है विद एल्ब्यूमिन वो कम हो जाएगी और हाइपोकैल्सीमिया काज हो जाएगा, और हाइपोकैल्सीमिया से मसल स्पैज्म स्टार्ट हो सकता है। नाउ काजेस ऑफ रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस ड्यू टू साइकिक रीज़न देयर इज़ हाइपरवेंटिलेशन, के इमोशंस के डिस्टर्बेंस में बॉडी जो है वो हाइपरवेंटिलेशन की तरफ जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल होना ज़्यादा होगा, या फिर पर्सन जो है वो हाई अल्टीट्यूड पे है तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हाई ब्रीदिंग रेट होगा तो भी हाइपरवेंटिलेशन होगी। और इसमें क्या होगा, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लोअर होगा तो बाइकार्बोनेट आयन स्लाइटली लोअर आल्सो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब PCO2 का लेवल कम हो जाएगा तो पार्ट ऑफ बाइकार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू CO2, जो आप पीछे पढ़ भी चुके हैं कि बाइकार्बोनेट आयन पोटाशियम के साथ कंबाइन होगा और हमारे पास CO2 और वाटर बनेगा। इसके अलावा जो कॉजेज़ हैं उसमें CNS ट्रॉमा है या सैलिसिलेट पॉइजनिंग है या फीवर है, तो इसमें भी रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस का फिनोमेना नज़र आ सकता है। और इसकी कंपनसेशन क्या है, डिक्रीज बाइकार्बोनेट आयन, तो बॉडी जो है वो वाया किडनी लार्जर अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट को एक्सक्रीट करेगी। Here are symptoms of respiratory alkalosis: seizure, deep rapid breathing, hyperventilation, tachycardia, lower blood pressure, hypokalemia, numbness, lethargy and confusion, lightheadedness and so on. Now metabolic acidosis. Metabolic acidosis जो है वो मोस्ट कॉमन एसिड बेस्ड डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होता है, डिक्रीज ऑफ pH और नेगेटिव बेस एक्सेस। और बेस एक्सेस जो है ये हमारे पास बेस्ट मार्कर है फॉर असेसिंग द मेटाबॉलिक कंपोनेंट्स ऑफ द एसिड बेस बैलेंस। और इसमें क्या होगा कि pH लो हो जाएगी, और जनरल काजेज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस इंक्लूड एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक एसिड्स एंड लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट। और इसमें लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट के साथ हमारे पास सोडियम का लॉस भी नज़र आएगा, लॉस ऑफ कैटाइंस प्रीडोमिनेटली सोडियम। और उसके बाद जो है
हमारी बॉडी में जो मेन एसिड बाइकार्बोनेट बफर के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है वो कार्बोनिक एसिड है। आप पीछे पढ़ चुके हैं कि इसे मेटाबॉलिक एसिड कहते हैं। तो ये इफ़ेक्ट होगा और इसका लेवल भी जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में ज़्यादा होगा। अब बाइकार्बोनेट आयन जो है ये GIT से ऑलमोस्ट लॉस्ट होगा और जो हमारे पास किडनीज़ हैं वो भी बाइकार्बोनेट आयन का लॉस करेंगी। और यहाँ पे हम इसको असेस करते हैं बाय एनायन गैप कैलकुलेशन। अगर एनायन गैप जो है वो हाई होगा तो इसका मतलब है बॉडी में प्रोडक्शन ऑफ एसिड हाई है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ बॉडी जा रही है। और जब नॉर्मल बॉडी इसको लेके आएगी एनायन गैप पे, देन देयर विल बी एलिवेट लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। नाउ सम पार्टिकुलर स्टेट्स जो कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस को बढ़ाती हैं, उसमें हाइपोक्सिया है। आप पढ़ चुके हैं बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कि एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में जो है वो हमारे पास बाई प्रोडक्ट के तौर पे लैक्टेट जनरेट होता है और लैक्टेट जो है वो हाइपोक्सिया की तरफ लेके हाइपोक्सिया जो है वो लैक्टिक एसिडोसिस की तरफ लेके जाएगा और हाई लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन की वजह से हमारे पास जो है वो बॉडी एक तो रेस्पिरेटरी RAC की तरफ और साथ में मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ जाएगी। या फिर हमारे पास जब एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज़ होगा, व्हेन देयर इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस या स्टार्विंग कंडीशन है, तो उसमें कीटो एसिडोसिस का प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगा। ये आपने लिपिड मेटाबॉलिज्म में पढ़ा होगा। इफ़ देयर इज़ अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन और रीनल इनसफिशेंसी जो है उसमें भी देयर इज़ एक्सक्रीशन ऑफ एसिड्स एंड इट कैन कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस और इन हैवी डायरिया। और व्हेन देयर इज़ लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट from the kidneys. In all these conditions, buffering of excess of proton takes place and bicarbonate forms with H plus carbonic acid और कार्बोनिक एसिड से फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स में से एलिमिनेट होगी। Here are some symptoms of metabolic acidosis: headache, low blood pressure, hyperkalemia, muscle twitching, nausea, vomiting, small respiration। ये आप पीछे भी देख चुके हैं कि causes of high proton production है, then low proton elimination है renal failure में, low bicarbonate production है dehydration में, liver failure में। Then there are some other symptoms of metabolic acidosis, compensation of metabolic acidosis है कि जितनी भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस की काजेस हैं उसमें क्या होगा, बफरिंग ऑफ एक्सेस प्रोटॉन विल बी टेकन प्लेस एंड बाइकार्बोनेट जो है वो, ये मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ कि बाइकार्बोनेट जो है वो प्रोटॉन के साथ ज्वाइन करेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा और कार्बोनिक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स में से एलिमिनेट होगा। सेकंड स्टेप क्या है कंपनसेशन में, हाइपर वेंटिलेशन है और हाइपर वेंटिलेशन से प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज़ होगा और pH जो है वो हाई होना शुरू हो जाएगी और हम इसको कॉस्मॉल एसिडोटिक ब्रीथिंग भी कहते हैं। थर्ड स्टेप करेक्शन में किडनीज काम करेंगी और किडनीज जो हैं वो दो फंक्शन परफॉर्म करती हैं, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ प्रोटॉन जो मैंने ऊपर भी बताया है एंड न्यू प्रोडक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। तो हमारे पास यूरिन जो है वो एसिडिक होगा। देन मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है
metabolic alkalosis is characterized by increased pH and rise base excess, और इसकी जनरल कॉजेज में लॉस ऑफ एनाइंस है जिसमें क्लोराइड्स और प्रोटीन हैं, इंक्रीज कैटाइन कंसंट्रेशन है जिसमें सोडियम, इंक्रीज अल्कली इनटेक है, और इसमें जो हमारे पास और बहुत मेन जो अफेक्ट कर रहे हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस को, उसमें वॉमिटिंग है जिसमें लॉस ऑफ HCl होगा तो लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा, सो हम इसको कहेंगे ये हाइपोक्लोरेमिक अल्कलोसिस है, और ये डायूरेटिक्स की वजह से भी हो सकती है। और फिर हाइपोप्रोटीनीमिया, जब प्रोटीन की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाए तो हाइपोप्रोटीनिया मेनली लिवर फेलियर या नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये मैंने ऊपर आपको स्लाइड में भी दिखाया है। देन हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, इसमें भी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो सकती है, और बॉडी जो है इसको कंपनसेट करती है बाय हाइपोवेंटिलेशन। मेनली हाइपोवेंटिलेशन से लेस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होगी तो PCO2 राइज होगा और pH जो है वो लोअर हो जाएगी। In case that alkalosis is not caused by the kidneys, renal correction can take place and it is performed by higher excretion of bicarbonate. One of the serious consequences of alkalosis is hypokalemia that lead to heart rhythm disturbances. These are the symptoms of metabolic alkalosis. Confusion है, टैकीकार्डिया है ड्यू टू लो पोटाशियम, और कंपनसेटरी में हाइपोवेंटिलेशन होगी, nausea, vomiting, diarrhea, irritability, dizziness and so on. Thank you for today's lecture. If you have any question regarding this acid base imbalance, then please let me know in the comment section.